Hello everyone. Today we are going to study about the biological classification. What is biological classification and what is the need of classification in biology? स्टूडेंट, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे हैं उसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करते हैं और क्या क्या स्पेशल फीचर्स है, उस स्पेशल फीचर्स के बेसिस पे हम अलग अलग ग्रुप में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर दिए हैं और इसी सिस्टम को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। बट एंशिएंट टाइम्स एंड अर्लियर मेनी साइंटिस्ट कम्स एंड स्टार्ट देयर क्लासिफिकेशन ऑन देयर ओन बेसिस, but due to some shortcomings that classification was failed, and this classification system is started from two kingdom classification system, three kingdom classification system, four kingdom classification system, and finally we got the five kingdom classification. Five kingdom classification system was proposed by R.H. Whittaker in 1969, and this classification is accepted by all the scientists, and according to five kingdom classification systems, all living organisms are divided into five major kingdoms like Monera, Protista, Fungia, Plantia, Animalia, and these all organisms are categorized, divided on the basis of their basic features. See here, we study in details one by one what is Monera, what is Protista, what is Plantia, what is Fungi, and what is Animalia. Now we can move for the further slides to study in more details. See here, basis of classification. What is the actual base? On that basis classification was done. The first one is cell structure. On the basis of cell structures, all living organisms are categorized into two groups, prokaryotic cells as well as eukaryotic cells, or you can say that prokaryotic living organisms and eukaryotic living organisms. See here, we can explain here. There are two words, prokaryotic as well as eukaryotic. These structures are differentiated on the basis of presence of nucleus. Pro means what? Pro means primitive. Pro means primitive, and karyotes means nucleus. There is a branch, karyology. Karyology, karyo means nucleus and logy means study. जिसमें हम न्यूक्लियस का स्टडी करते हैं उसको कैरियोलॉजी बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, व्हाइल इफ यू कंपेयर यूकैरियोटिक विथ प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक हैज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. Apart from nucleus, there are several cell organelles which are present in eukaryotic cells. On that basis, all living organisms are categorized into two groups, prokaryotes as well as eukaryotes. Now, body organization. On the basis of body organizations, all living are categorized into unicellular, colonial, multicellular level of tissue differentiations. On that basis, all living organisms are categorized like this. And next one is mode of nutrition. Mode of कैसे भोजन लेता है, उस भोजन के बेसिस पे what is the actual mode of taking their foods. On that basis, organisms are classified into various groups, but majorly here we discuss about the only two different types of groups like autotrophic and heterotrophic. Word itself explains what is the meaning of autotrophic. Auto means self. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर अपने से अपने फूड का सिंथेसिस कर लेते हैं वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स
इस कैटेगरी में आते हैं ऑटोट्रॉपिक, एंड इसको एक नाम और देते हैं फोटोसिंथेटिक एज वेल एज कीमोसिंथेटिक. दीज आर द मोड्स थ्रू विच दे कैन टेक देयर न्यूट्रिशन. While in the case of heterotropic, they are unable to synthesize their food. They are dependent on others. That's why it is called heterotropics. And saprophytes and holozoic. These are two important terms like saprophytic. What is the saprophytic? Those living organisms which can take their nutrition from dead and decaying matters. Or holozoic, just like animal. Now, reproduction and phylogeny. Reproduction, in earlier slide, in earlier chapters, we discussed about the reproduction. Reproduction is a mode of reproduction through which a living organism has capacity to develop same kinds of new individuals. Without reproduction, a life cannot exist for longer time on the earth. While phylogeny means हम किसी चीज का स्टडी अगर उसके प्रीवियस जनरेशन के बेसिस पे करें, क्या क्या कैरेक्टर्स उसके प्रीवियस जनरेशन में थे, उस बेसिस पे अगर हम लोग क्लासिफाई करें, कैटेगराइज करें, तो भी ये एक मोड बनता है हमारा क्लासिफिकेशन का. बच्चों, क्लासिफिकेशन के साथ साथ हमें एक वर्ड और पढ़ना है, टैक्सोनॉमी. क्लासिफिकेशन हम किसी भी बेस पे कर सकते हैं. जैसे क्लासिफिकेशन, अगर हम एक क्लास है, इंटायर क्लास को अगर हम दो ग्रुप में बांट दें, एंड वी हैव टारगेट टू क्लासिफाई योर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ सम फीचर्स विच आर अपीयर्स प्रेजेंटली इन द क्लास. तो उस बेसिस पे अगर हमें पूरे क्लास को बांटना है, तो वी कैन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेयर लेंथ. अगर हम ऐसा कहें कि जिसका बाल बड़ा बड़ा होता है वो गर्ल्स होती है, और जिसका बाल छोटा होता है वो बॉयज होता है. बट क्या ये सही है? नो, नेवर. बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके हेयर लॉन्ग होते हैं, और बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती हैं जिसके हेयर शॉर्ट होती हैं. तो ये भी एक तरह का क्लासिफिकेशन है. इस बेसिस पे हम बच्चों को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं. सेम जैसे हाइट वाइज अगर हम लोग बांटे क्लास को, तो दैट इज नॉट अ करेक्ट वे टू क्लासीफाई द स्टूडेंट. ऐसे भी हैं कि छोटे हाइट के बच्चे सीनियर क्लास में पढ़ रहे हैं और बड़े हाइट के बच्चे जूनियर क्लास में पढ़ रहे हैं, बट दैट इज नॉट अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन. दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कम्स अंडर क्लासिफिकेशन. So we can select different parameters on which we can classify, and we got 5 kingdom classifications. Now here we discuss about the kingdom Monera. Some features on that basis we classify living organisms under Monera. See, all prokaryotic cells comes into Monera. Monera is basically, we can give the examples regarding Monera: bacteria, prokaryotic cells as well as Monera. In Monera, organisms are microscopic. पहला और इम्पॉर्टेंट फीचर है मोनेरा का कि वो कैसा होना चाहिए. अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मोनेरा में आ रहा है तो वो क्या होना चाहिए? प्रोकैरियोटिक होना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए, एंड दीज सम एडिशनल फीचर्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स. एंड सी हियर सम की फीचर्स रिगार्डिंग मोनेरा. No membrane bound nucleus cell organelles. Earlier we discussed about the prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic cells में किसी भी तरह का सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है एक्सेप्ट राइबोसोम्स. एंड राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स बेसिकली एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो बोथ दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स में इसका टाइप जो होता है 70S टाइप का होता है.
जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में इसका जो टाइप होता है ATS टाइप का होता है। एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सेडबर्ग कांस्टेंट। 70S prokaryotic cells, 80S eukaryotic cells. Now come for the next point. Cell wall present except mycoplasma. One word is here, mycoplasma. In earlier we kept mycoplasma in Monera, in bacteria, but now these are the different groups. Mycoplasma is the smallest living organism on the earth. Mycoplasma is also known as, see here, mycoplasma is also known as PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये अलग होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज मत होना आप लोग। ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया नहीं है, इसका स्ट्रक्चर्स अलग होता है, ये अलग ग्रुप का मेंबर्स है। पेप्टाइडोग्लाइकैन इन मोस्ट बैक्टीरिया, जो ये बैक्टीरिया होता है, जो मोनेरा होता है, मोनेरा का जो ये बाहरी स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। एंड केमिकली इट इज कंपोज्ड बाय पेप्टाइडोग्लाइकॉन। नाउ न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया कैन शो autotrophic nutrition through photosynthesis. Some bacteria are able to synthesize their own food with the help of photosynthesis, and some bacteria which can synthesize their food with the help of some chemicals that is called chemosynthetic. Apart from that, bacteria are heterotrophic also. Some bacteria are unable to synthesize their own food, they are dependent on others. That comes under heterotrophic nutrition. Includes bacteria, cyanobacteria, mycoplasma and archaeobacteria. What is archaeobacteria? Archaeobacteria is in extreme conditions hot spring. Dear students, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्रोबेबिलिटी है मोनेरा का हमारे अर्थ पे, सभी पार्ट में मोनेरा पाया जाता है, और उसमें जो एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाता है, जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाता है, उसको हम लोग आर्कियोबैक्टीरिया के कैटेगरी में रखते हैं। ये कहाँ कहाँ पे मिल सकता है देख सकते हैं आप, हॉट स्प्रिंग, सॉल्टी लेक्स, मार्सी एरियाज, यूनिक लिक्विड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। बाय द हेल्प ऑफ यूनिक लिक्विड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स दे कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस। Now second kingdom, Protista. In Protista is totally different from Monera. In Protista, the organisms which are eukaryotic. See the differences in Monera and Protista. Protista में जो organisms आते हैं वो सारे organisms eukaryotic होते हैं, microscopic होते हैं, and these are the some examples of Protista: Paramecium, Amoeba, Euglena. These three are unicellular, eukaryotic and microscopic. Some basic features of Protista is like that: unicellular, eukaryotic, first group with membrane bound nucleus. अभी ये डिफरेंसेज है। मोनेरा में हम कह रहे थे कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, बट यहाँ पे सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, न्यूक्लियस पाया जाएगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाएगा, एंड दिस ऑल आर कंटेन विच टाइप ऑफ आरएनए, विच टाइप ऑफ not RNA, ribosomes, ATS type
राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन दिस। से एक्वेटिक सम फ्रॉम कॉलोनियल, कुछ ऐसे इसमें होते हैं क्रीचर्स जो ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, जैसे वॉलवॉक्स है। इंक्लूड्स क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लेनवाइड। क्राइसोफाइट्स इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी। डाइनोफ्लैजलेट्स ऐसे एनिमल्स जिसके पास टू फ्लैजिला हो, यूग्लेनवाइड, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोवंस। डाइनोफ्लैजलेट्स रेड टाइड्स इन सी, कभी कभी समुद्र का पानी लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्राइसोफाइट्स। डाइटम्स सिलिशियस सेल वॉल, link between non-living chemicals and complex life form. These features will come in Protista. Here, another kingdom, that is fungi. In fungi, the organisms which are heterotrophic, not autotrophic. जितने भी फंजाई होते हैं, जो फंजाई ग्रुप्स में आते हैं, उसमें अपने से भोजन बनाने की कैपेसिटी नहीं होता है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। और जनरली जो फंजाई होता है, ये फंजाई हेट्रोट्रॉपिक होता है, सेप्रोफिटिक होता है, एंड समटाइम्स इट कंसिडर एज पैरासिटिक। सी, जो स्टडी होता है, अगर हम लोग फंजाई की बात करें, स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज mycology. Here we study some basic features of fungi, how the body will organize, what is the components of the fungi body. जो फंजाई होता है, फंगस आप लोग जानते हो क्या? अगर कोई ब्रेड है, अगर उसको वो भीगा हुआ है एंड 2 या 4 दिन के लिए छूट गया है कहीं पे डार्क कंडीशन में, तो एक कॉटन की तरह स्ट्रक्चर उस पर दिखता है। उस कॉटन के स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग जनरली फंजाई बोलते हैं। क्या होता है कि जब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे इस फंजाई का, तो इसकी बॉडी बहुत ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है। हर एक थ्रेड को हम लोग कहते हैं हाइफी। क्या बोलेंगे? हाइफी। एंड हाइफी इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द फंजाई बॉडी। जब फंजाई एक साथ मिलता है तो एक डार्क स्ट्रक्चर बनाता है, और इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। तो माइसीलियम ही फंजाई के जो बॉडी होती है उसको हम लोग माइसीलियम बोलते हैं, और माइसीलियम के एक यूनिट को हम लोग हाइफी बोलते हैं। इस चीज़ को पढ़ने के लिए वी कैन टेक अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर फंजाई, दैट इज कॉल्ड Rhizopus. Rhizopus is also known as bread mold. Bread mold. What say here? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका जो स्ट्रक्चर है जो बॉडी का, जैसे ये एक इसकी हाइफी है, ये क्या है? हाइफी है। यही हाइफी मॉडिफाइड होके ये स्ट्रक्चर को बनाती है। कुछ हाइफी जो ऊपर की तरह ग्रोथ करती है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्पोरेंजियोफोर। क्या बोलेंगे? एस्पोरेंजियोफोर। और इसके ऊपर एक ये सोलेन पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलेंगे एस्पोरेंजियम। व्हाट इज कॉल्ड? एस्पोरेंजियम। Inside sporangium, spores are present. After getting maturation, it will burst and spores will spread in atmosphere. When suitable condition and falls on the ground on substrate, when suitable conditions will come, then it will germinate to form another hyphae and mycelium. इस तरीके से ये ग्रोथ करता है और आगे बढ़ता है। हेट्रोट्रॉपिक, यूकैरियोटिक, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम सबस्ट्रेट। बॉडी को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्या बोलते हैं क्या? माइसीलियम बोलते हैं। और माइसीलियम एक थ्रेड से बना होता है, उसको क्या बोलेंगे?
हाइफी, ठीक है। एंड द सेल वॉल ऑफ हाइफी इज कंपोज्ड बाय काइटिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग नोट करेंगे इसको। 3 वर्ड्स हैं, माइसीलियम, हाइफी एंड काइटिन। फंजाई के बॉडी को माइसीलियम बोलेंगे। ये माइसीलियम किससे बना होता है? हाइफी से बना होता है। और हाइफी का जो सेल वॉल होता है वो किस केमिकल से बना होता है? काइटिन से बना होता है। गुड। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, एसेक्सुअल, कोनिडिया, सेक्सुअल, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, these are the sex organs through which fungi reproduce and form their new body. क्लासिफिकेशन, इसको क्लासिफाई कर दिया गया है फंजाई को किसमें किस क्लासेस में? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। यहाँ पे एक नोट करके बेटा आप लोग एक टर्म को नोट करिए यहाँ पे, लाइकेन। व्हाट इज लाइकेन? लाइकेन is a living organism which is basically composed by algae and fungi. सपोज इसकी ये एक बॉडी है, तो बॉडी में जो ये 50% जो पार्ट होता है वो एल्गी से बना होता है, 50% पार्ट जो होता है वो फंजाई से बना होता है। क्लियर हुआ? और लाइकेन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। व्हाट इज सिम्बायोसिस? ये टर्म बार बार आएगा और लगभग सारे क्लास में आएगा। सिम्बायोसिस इज अ रिलेशन बिटवीन 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच both are living together and both are beneficial to each other, they never harm to each other. एंड इसमें जो लाइकेन में जो कॉम्बिनेशन होता है एल्गी और फंजाई का, जो फंजाई कंपोनेंट होता है उसको हम लोग माइकोबायंट बोलते हैं, और जो एल्गी का पार्ट होता है उसको फाइकोबायंट। विच वन? माइकोबायंट्स एंड फाइकोबायंट्स, these are the 2 components of lichen. Mycorrhiza, what is mycorrhiza? It is also a association between roots and fungi, जिसमें हायर प्लांट्स के रूट होते हैं और कुछ फंजाई होते हैं जो आपस में एसोसिएशन बना के और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते रहते हैं। See here, plant kingdom. Now plant kingdom, in plant kingdom we study about all the plants, and here some basic feature of plant kingdom like autotrophic eukaryotic, chlorophyll containing cell wall of cellulose. अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन का जो बना होता है वो बैक्टीरिया सेल वॉल होता है, फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। अब इधर प्लांट आ गया तो प्लांट का जो सेल वॉल है वो किससे बना होगा? सेलुलोज का बना होगा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान देंगे और इसको लर्न करेंगे। सेल वॉल ऑफ प्लांट इज कंपोज्ड बाय सेलुलोज। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स, डिप्लॉइड सेप्रोफाइट्स, इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन सारे प्लांट्स को हम लोग अलग अलग ग्रुप में बांट दिए हैं। जो प्लांटिया है, प्लांटिया में हमने अलग अलग ग्रुप को बांटा हुआ है। कैसे कैसे बांटेंगे हम लोग? यहाँ पे आता है एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। इस तरह से प्लांट का जो अर्थ पे जो शुरुआत हुआ, ऐसे ऐसे ही अर्थ पे प्लांट आए स्टार्टिंग से। पहले एल्गी आया, फिर एल्गी के बाद लाइकेन्स बना, लाइकेन के बाद ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। तो आज के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सभी के सभी एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल्स हैं। सी हियर, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, some partially heterotrophic bladder wort
insectivorous plants and Cuscuta parasitic plants. These are the example of Plantia. Now, if just like plant, animal is also classified. See here, पूरे एनिमल्स को हम लोगों ने इतने ग्रुप में बांट दिया है। जैसे एनिमल को हम लोगों ने बांटा है पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थेस, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. These are the classification of animals, and here are some basic features regarding animals. Multicellular eukaryotic, no cell wall, holozoic, heterotrophic nutrition, organized into tissue, organ and organ system. On that basis, they are classified in different groups. Sexual reproduction, predominantly diploid organisms, ranges from sponges to advanced chordate vertebrates. Apart from that, these are not come into that, like virus, viroid and lichens. These are the microscopic organisms. Here virus is not considered. ये अलग है, न प्रोकैरियोट है न यूकैरियोट है। वायरस के केसेस में आप लोग समझ लीजिए एक्चुअल है क्या वायरस, नॉन सेलुलर इनर्ट आउटसाइड होस्ट, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए प्लस दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. सपोज हियर अगर एक वायरस की बॉडी होती है, अगर हमने यहाँ पे बोरस भी बॉडी तो इसकी बॉडी कैसे बनी होती है, इसके बॉडी में क्या क्या होता है. सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे प्रोटीन का. प्रोटीन होगा प्लस इसमें या तो डीएनए होगा या इसमें क्या होगा, आरएनए होगा. कोई भी ऐसा एक वायरस अभी तक नहीं खोजा गया है जिसमें एक साथ प्रोटीन के साथ साथ डीएनए और आरएनए एक साथ मिले. क्लियर हुआ सभी को? कभी भी डीएनए और आरएनए एक साथ वायरस में नहीं मिलता है. अभी देखिए हम लोग बात करेंगे कि जनरली जो वायरस होते हैं, जो प्लांट वायरस होते हैं, प्लांट वायरसेज में जनरली ये देखा गया है कि ये आरएनए कंटेनिंग वायरस जो होते हैं वो प्लांट वायरस होते हैं, और जो डीएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं वो एनिमल वायरस होते हैं. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, लाइक जैसे HIV है, ये एनिमल वायरस है बट इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए और आरएनए का कॉम्बिनेशन होता है, वो HIV में हमेशा आरएनए होता है. और एक रिसेंटली एक अभी वायरस अटैक किया था, पूरे ग्लोबली अटैक किया था, पेंडेमिक किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं कोविड-19. इसमें भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए ही होता है. ये चीज़ें क्लियर हो गया? ओके. नाउ व्हाट इज वायरवाइड्स? इसकी एक खासियत और है, जब ये शरीर से बाहर रहता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से बाहर रहेगा तो डेड रहेगा. जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में आएगा वो क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा. इसमें जो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, इसी प्रोटीन स्ट्रक्चर को हम लोग कैप्सिड और कैप्सोमियर बोलते हैं. यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर मेंशन किया हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन कोड. तो जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग कैप्सिड बोलेंगे या कैप्सोमियर बोलेंगे. एग्जाम्पल्स क्या है? TMV, टोबैको मोजाइक वायरस, ये एक प्लांट वायरस का एग्जाम्पल है. जबकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि HIV, ये क्या है? ये एक एनिमल वायरस का एग्जाम्पल है. और यहीं पे एक बैक्टीरियोफेज आया है. व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? द वायरस विच कैन टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम बैक्टीरिया. यानी एक स्पेशल टाइप का वायरस है जो बैक्टीरिया से अपना भोजन लेता है, और उस बेसिस पे इसका नाम हम लोगों ने बैक्टीरियोफेज किया है. इसको डिटेल में यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ लेते हैं. नाउ कम टू द वायरवाइड. व्हाट इज वायरवाइड? वायरवाइड डिस्कवर्ड बाय टियोडोनियर नेकेड आरएनए. ये जस्ट एक जेनेटिक मटेरियल है एंड दे हैव कैपेसिटी टू
डेवलप डिजीज इन द ऑर्गेनिजम्स, ये अपने आप में एक कैजुअल ऑर्गेनिज्म है। नो प्रोटीन कोड, यहाँ पे कोई प्रोटीन कोड नहीं होता। अगर प्रोटीन कोड होता तो वायरवाइड को हम लोग क्या बोलते, वायरस बोलते। बट जैसे वायरस से प्रोटीन कोड हट जाता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, आरएनए रहेगा, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, वायरवाइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉजेज डिजीज इन क्रॉप, जनरली एक क्रॉप्स में डिजीज को पैदा करता है। ये एक यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये डायग्राम है। ये एक तरह का वायरस है जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है। See here, here we are going to compare 5 kingdom। सभी किंगडम को यहाँ पे एक बार कंपेयर कर लिया जाए। क्या क्या हम लोगों ने बेसिक इसके बारे में पढ़ा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। इट मीन्स व्हाट, आर.एच. विटेकर ने पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरी में बांट दिया था, 5 ग्रुप्स में बांट दिया था। यही वो 5 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। एंड सम keywords are there. See, unicellular, autotrophic, heterotrophic, no nuclear in vivo. Eukaryotic, unicellular, autotrophic, heterotrophic, eukaryotic, multicellular except yeast. Yeast is the example of fungi. Heterotrophic, saprophytic cell wall with chitin. Here cell wall with what? There is no cell wall in Protista. Monera में पेप्टाइडोग्लाइकॉन का होता है, प्लांटिया में सेलुलोज का होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। प्रोटिस्टा और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है। अब ये बोर्ड से रिलेटेड की जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और कितने नंबर का हम लोग इस चैप्टर से बोर्ड के एग्जाम में कैरी कर सकते हैं, अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। 4 to 6 मार्क का इसमें आता है, 2 सेक्शन में रहता है, A प्लस B। और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे 1 मार्क्स का भी आएगा, 2 मार्क्स का भी आएगा और 3 मार्क्स का भी आएगा। एंड दीज आर सम फ्यू क्वेश्चंस you have to practice on it. Name the kingdom to which mycoplasma belong, why it is unique. Already we have discussed in this slide. Differentiate between autotrophic, heterotrophic nutritions. One example is 2 marks का होगा। State 2 distinct features between viruses, viroidomas। इस तरह से आप इस चैप्टर का क्वेश्चन कर सकते हैं। Now this portion is over. Thank you. Have a nice day. If you have any doubts, kindly come and clear that doubt. Thank you.